now. Now I will share you. So last time we have studied many processes like investment casting process, centrifugal casting process. Before that, other molding process we have studied: shell molding, CO2 molding, and others. But one process which is remain, that is die casting. Okay. So today we will see the die casting. Huh? So this portion, just now I am moving fast forward. So this and continuous casting also we studied. Now this is die casting. Uh, Die casting. So these are the two platons or two dies. Okay, these are the two plates. This is one fixed plate and this is moving plate, and on which two dies are there. One is male die, one is female die. So this is the casting having the cavity is known as female die, and slight protruding part that is known as male die. So male female combination and certain gap, and in that gap we are filling the molten metal. So that is the die casting process. So these are actually also known as permanent die casting because the dies are permanent na here. So these are the permanent. एक बार बना दिया तो permanent है. It is not like the mold, sand mold, which we are making and later on collapsing or breaking those mold. It is not like that. That's a permanent die. And what is happening is, once you make this particular job, you can move this platen back. You remove this casting, and again this cavity is ready for next process. So what we do is, the shape which we want, that casting, that is already prepared in this die. Whenever you are making die, that provision is taken that this particular shape is actually there. It is carved in that die. Female piece, male piece. So that gap is nothing but the job you want. Okay. So now what you do is, your molten metal you put from this end. Generally, this process is not used for steel. This process is used for low melting point temperature metals like aluminum, white metal, zinc, like that. Okay. For aluminum die casting, it is very popular. Many automobile parts are made by these die casting parts. Okay. So you put the molten metal from here. So it will come here, It will and come then here and then yeah, yeah. 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 I'm getting my own echo. Actually, somebody has opened, I think. Please close your that device. Okay. Uh, so this piston will be pressing this molten metal in this cavity, so that it is pressed in this cavity. It is under pressure. It will be inserted in this cavity, and the molten metal will go here. And then what happens after that? You remove this. Move this platen back. There is a ejector pins in this fixed platen, in this die, ejector pin, which will push the job out. Then you take the job out, and again you close this moving plate inside. Before that, one powder is sprinkled so that this molten metal should not stick to the this die. Okay, otherwise it will become the part of the die. So there is some powder, even talcum powder will do the purpose. It will not stick to that, and then it will be readily removed. So these are actually the this is the setup of die casting process. Okay. So certain notes I have written about die casting. Here I'll give the heading. Die casting. Okay. Three types of die castings are there. HPDC, that is high pressure die casting, where the pressure given on the molten metal, the pressure is higher. Then gravity die casting, this is vertical process. Whatever I have shown you, this process is horizontal die casting, which is more famous. But vertical die casting is also equally used in certain components.
then LPDC, that is lower pressure die casting. So what basically is it is given here, huh? These are die casting processes. So it is there. Can give here. So these are various die casting processes. You can see cold chamber, high pressure die casting, or high pressure it is. Okay. So the pressure used in the piston is higher. Okay. Then its application is given here. So aerospace engine parts, automobile parts, that is used here. Then you have one LPDC, that is low pressure die casting. So it is gravity die casting is ideal for diverse complex aluminum casting production of automobile like turbos, brakes, calipers, knuckles. For these parts it is more suitable. And LPDC, that is lower pressure, for that it is for axial symmetrical parts like car wheels, etc. So these parts are made for this. So 0.7 bar is pressure, 10 raised to 5 Newton per mm square. That is the pressure. 1 bar means, so that you are studying in thermodynamics, so you know more than me now. So this 0.7 bar is used for low pressure. For HPDC it is more than 10 bar, 10 to 15 bar, and even more than that, depend upon the complexity of the product. If the complexity is more, then you have to give the more pressure, so that in the small cross section the material should go, otherwise it will be, the defect will be underfilled. That will be one defect. So then die casting advantages, that is also given here. So we will see some videos and animation of die casting, so you will come to know the sequence of processes. Okay, so we will now go there. We will just minimize this, because suddenly we are again coming here. So key notes, first only casting defects. Okay, so it's die casting. Okay, so we will see this die casting animations, etc. Okay, and then few videos also we will see. So this is that die casting animation. Okay, this is all, yeah, on YouTube also it is available, but since I am showing you now this. So here the molten metal is been put here, from this end. Then here is the piston which is going to press. These are the parts. These two dies are closed, and this is the cavity. Now you can observe this is the cavity, and this molten metal is pressed by piston, and it will go on the either end. अभी ये part हमको चाहिए ना, अभी इसको निकल दिया जाएगा. This will move back. Okay, and there are ejector pins also. Ejector pin इसको ढकेल देगा बाहर. So हमारे पास वो एल्यूमिनियम का ये तैयार हो गया. दो पास बीच का पोर्शन कट कर दिया एक्सो से, हमको मिल गया ये एल्यूमिनियम का फिनिश्ड डाई कास्ट. ओके, सो दिस इज अबाउट एनिमेशन. वंस अगेन वी विल सी दिस. वंस अगेन वी विल सी केयरफुली. आप देखो वैरायटी. So two dies are shown. These dies are fitted on the plates, two plates, fixed plate, moving plate. Okay, so you can see here two plates are brought together. Many designs are there. Sometimes this is moving, sometimes that left side is moving. You can say from one of the die inside or plunged inside by piston or plunger, and then up to cooling we have to wait. So we are waiting, and from ejector pin, now whatever is the die gap, it is completely filled, तो सेम शेप आपको मिलेगा. अभी ये डाइस को आपको तोड़ने की जरूरत नहीं, जस्ट लाइक सैंड कास्टिंग में हम करते थे. इसलिए दिस इज आल्सो नोन एज परमानेंट मोल्ड कास्टिंग और परमानेंट मोल्ड डाई कास्टिंग or simply die casting. If it is the process is horizontal, it is known as horizontal die casting. If it is vertical, we know it vertical die casting. So we will see some more videos now. ये कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग. वही अगर आपका चेम्बर कोल्ड कंडीशन में है, तो इसको ये जो चेम्बर है ना, ये चेम्बर आपका अगर कोल्ड कंडीशन में है, तो कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग. कभी कभी क्या होता है, मोल्टन मेटल जल्दी फ्रीज होने का चांस रहता है. ओके, मोल्टन मेटल जल्दी फ्रीज होने का, ये देखो स्प्रे वगैरह करते हैं लोग, दो पार्ट नजदीक लाने के पहले ये गैप है. देखो अभी ये मोल्टन मेटल डाल दिया,
और प्लंजर से या पिस्टन से डायरेक्टली उसको पुश किया, और ये कोल्ड चेंबर है। अभी ये इसी चेंबर को अगर फ्लेम से हीट करते रहेंगे हम लोग, इसी को हमेशा हीट करते रहेंगे, सो दिस विल बिकम हॉट चेंबर डाई कास्टिंग। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल कूलिंग रेट एंड अदर थिंग एंड कॉम्प्लिकेसी ऑफ द कास्टिंग। कभी कभी कॉम्प्लिकेसी ऑफ द कास्टिंग की वजह से हॉट चेंबर देना जरूरी पड़ता है, सो दैट मटेरियल शुड इजीली फ्लो। खास करके ऐसा छोटा सा क्रॉस सेक्शन रहेगा और वहां से आपको मटेरियल अंदर जाना चाहिए, तो आपका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा रहना जरूरी है, तो हॉट चेंबर डाई कास्टिंग हम लोग यूज करते हैं। सो बेसिकली प्रोसेस इज सेम, डाइज आर सेम, एवरीथिंग इज सेम। ये इजेक्शन के लिए इसको खींच के लाने के लिए एक रहेगा। मेनी टाइम्स रोबोट डू दिस, समटाइम people do it by hand, this geysers and this ये जो पकड़ रहता है उससे हम लोग निकालते हैं। हम लोगों को ये देखेंगे अभी, जस्ट अ मिनट। नाउ दिस इज वन मोर प्रोसेस, हॉट चेंबर डाई कास्टिंग। ये इसमें क्या रहता है, आपका ये चेंबर है ना, ये ऑलवेज हॉट, ये इतना ये फर्नेस में रहता है, और आपका जो चेंबर है ना ये हमेशा हॉट रहेगा। सो फॉर एग्जांपल इंडक्शन फर्नेस एक्सेट्रा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ हॅलो, लेक्चर मध्ये बेटा, लेक्चर घेतो। हाँ ठीक। हाँ, so this hot furnace is there, and this die is there, which हमेशा इसको कहते हैं हीट बात ही बोलते हैं, जिंक के लिए वगैरह जो रहता है ना, व्हाइट मेटल के लिए ऐसा हॉट बात ही रहता है। उस हॉट बात में अपना ऐसा ये प्लंजर डूबा हुआ है। हाँ, ये पोर्शन डूबा है, तो ये क्या करते हैं, ये हॉट हमेशा रहेगा ना, तो ये पोर्शन हमेशा हॉट रहेगा, तो ये इसके अंदर जाएगा, और जैसे ही जरूरत पड़ेगी वैसा ये वर्टिकल प्लंजर हम इसको पुश करेंगे, सो दैट इट विल गो लाइक पिचकारी रहती है ना अपनी पिचकारी स्टाइल। ये देखो ऐसा, यहाँ से ऐसा छोटा सा नोजल रहेगा, उससे प्रेशर से ये अंदर जाएगा, एंड बाकी इधर के डाइज वगैरह सेम है। सो दिस इज हॉट चेंबर डाई कास्टिंग। ओके, मतलब कोल्ड डाई और हॉट डाई, तो ये हॉट हॉट चेंबर डाई कास्टिंग। तो मतलब जो हॉरिजॉन्टल डाई कास्टिंग ये इसमें थोड़ा अलग है, और ये हॉट चेंबर डाई कास्टिंग में थोड़ा सा अलग है शेप, कि आप ये जो मोल्टन जिंक है ना, इसके लिए एक ऐसा बात ही रहता है, एक फर्नेस ही रहता है, इंडक्शन फर्नेस, छोटा सा साइज का, स्मॉल साइज homemade furnaces are also available, which are known as crucible furnace. फर्नेसेस का चैप्टर आपको इसमें नहीं है, वो भी हम पहले पढ़ाते थे, अभी इसमें नहीं है आपके इसमें। ओके, सो let us see now, just a minute, are you able to see this? Have you understood अभी तक जो भी बोला? Yes, sir. क्योंकि मेरे इसमें एक नोट आ रहा है कि योर नेटवर्क क्वालिटी इज बैड वगैरह, इसलिए मैंने थोड़ा पूछा आपको, क्योंकि बेटा है वो दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, सब स्टूडेंट, मतलब सिस्टम चालू है अपना। सो लेट्स गो टू सम मोर नाउ वीडियोस। ओके, ये हो गया परमानेंट मोल्ड ग्रेविटी कास्ट। एक मिनट, ये देखेंगे। हाँ, ये ग्रेविटी कास्ट का है, वो कह रहे हैं, so it must be vertical process. Let us see what is what. ये देखो, ये पहले एक मोल्ड उन्होंने बना के रखा है। हाँ, resin sand mixture is poured into tool. Steel core tool is heated to fuse the resin bond. ये क्या बना है मालूम है क्या? कोर बनाया है, कोर। मतलब हमको क्या करना है, देखो ये कोर उन्होंने डाइज में रखा, कोर है वो, यानी वो कैविटी चाहिए कास्टिंग में हमको। अभी देखो उन्होंने क्या किया, मोल्टन एल्यूमिनियम इज पोर्ड इनटू ग्रेविटी टूल बाय ग्रेविटी, और उसने जो भर दिया ना, वो पूरा वो राइजर से बाहर आया, और आपको क्या मिलेगा, अभी क्या मिलेगा देखो, वो अंदर का पूरा दिख रहा है आपको। हाँ, तो एल्यूमिनियम भर दिया है पूरा, एल्यूमिनियम का कास्टिंग तैयार हुआ विथ द हॉलो पोर्शन इनसाइड, जिसमें कोर ने उसको आने नहीं दिया, तो कोर इज हैविंग द सेम शेप ऑफ दैट ऑफ कैविटी। देखो अभी कोर निकालेंगे ये। हाँ, तो ये बेंड वगैरह रहता है ना, या एल्यूमिनियम के पार्ट्स अपने ऑटोमोबाइल के, जहाँ बेंड रहता है, या साइलेंसर उसको जोड़ते हैं बाद में,
या कार्बोरेटर का पार्ट, बाद में साइलेंसर उसको पीछे जोड़ते, तो ये तैयार हो गया देखो। तो ये इनसाइड जो कैविटी है दैट इज मेड बाय कोर। अभी आप ये बोलेंगे कोर और मोल्डिंग सैंड जैसा ही है, नहीं है लेकिन फर्क क्या है कि जो बाहर का जो डाई है वो फिक्स है अपना, यहाँ पे अपन लोग उसको कोलैप्स नहीं करते, नॉन कोलैप्सेबल डाई है, तो इट इज अ डाई कास्टिंग। ओके, डाई इज हैविंग द सेम शेप ऑफ द दैट ऑफ कास्टिंग। ओके, बट इन अपोजिट, मतलब अगर कास्टिंग का बराबर उसको मिरर इमेज उसमें आता है, और वो कैविटी जो रहेगा उसको कहते हैं आप डाई। ओके, सो दीज आर द डाई। तो ये ग्रेविटी यानी वर्टिकल एक्शन था, तो इसलिए ग्रेविटी डाई कास्टिंग है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। ये भी आप लोग एक देख लो, एल्यूमिनियम ग्रेविटी कास्टिंग है, वर्टिकल वर्टिकल डाई कास्टिंग प्रोसेस। ओके, हाँ, ये देखो ये लोग भी कोर बना रहे, ये जो येलो कलर है ना, येलो को ये कोर सैंड का है। तो कोर सैंड में बॉयंसी फिर बहुत आता है, वो हॉलो है ना, तो उसमें एक्चुअली फोर्सेस बहुत आते हैं उसके ऊपर। तो कोर सैंड सर आपका आवाज नहीं आ रहा। somebody is muting me, somebody doesn't like I think the lecture. प्लीज डोंट डू दैट, अदरवाइज मुझे सेटिंग में जाके फिर एक बार ओनली मी ऐसा करना पड़ेगा, टाइम पास हो जाएगा बच्चों। प्लीज एक मिनट। नाउ इट इज ओपन, नाउ इज इट ओके? डोंट डू दैट, अदरवाइज मुझे रोकना पड़ेगा, फिर आप लोग खुद करो अगर ऐसा अगर करना है तो, फिर डोंट डू प्लीज। हाँ देखो, ये बाहर का डाई है, हाँ, ये बाहर का डाई है, और ये जो है ना ये कोर है येलो कलर का, तो दैट विल क्रिएट द कैविटी। आर यू गेटिंग नाउ माय वॉइस? हेलो? यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ हाँ, तो ये बाहर का जो है ना ये डाई है, और उससे आपका बाहर का शेप तैयार होगा कास्टिंग का, और अंदर का कैविटी इससे तैयार होगा, किससे? कोर से। ये देखो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कोर में भी अलग अलग ऐसा पार्ट्स करके जोड़ते हैं, एक पीस में बनाना मुश्किल है रे भाई, वो अंदर का पार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहता है। अभी टॉप डाई जा रहा है उसके ऊपर, और हम क्या करेंगे अभी, एल्यूमिनियम पोर करेंगे। ये देखो ये अपना ऑपरेटर फर्नेस की तरफ जा रहा है, सो दिस इज दैट इंडक्शन फर्नेस। जो हॉट बात अपन ने बोला था ना थोड़ी देर पहले डाई कास्टिंग में, लेकिन ये हम सेपरेटली दे रहे हैं। उसने हॉट एल्यूमिनियम लेके आया, और वो अभी उसमें पोर कर रहा है, देखो देखो बच्चों, ही इज पोरिंग नाउ। सो दिस प्रोसेस इज वर्टिकल। ये देखो ये जो प्लंजर है ना वर्टिकल जा रहा है ना, ये डाई लेके छोटा, तो इट इज अ वर्टिकल प्रोसेस। हमने जो थोड़ी देर पहले देखा वो हॉरिजॉन्टल था। तो देखो ये बॉटम डाई एंड दिस इज द टॉप डाई। बॉटम डाई में भी दो पार्ट्स है उनके, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन है, ये सब मतलब सबका थोड़ा थोड़ा कॉम्बिनेशन है। ये देखो ये दो हाफ में बॉटम डाई, टॉप हाफ में एक डाई, और ये अभी जॉब निकल रहा था, और वो पहले से उन्होंने सेटिंग दिखाया, अभी पहला पार्ट फिर से चालू हो गया, यहाँ उन्होंने एंड कर दिया एक्चुअली, उन्होंने कंपोनेंट निकाल के नहीं दिखाया हमको। ओके, तो हम और एक देखेंगे और थोड़ा सा उसमें, जस्ट अ मिनट, मैं शेयरिंग से बाहर आया थोड़ा सा, फिर से शेयर करता हूँ। ये हो गया एनिमेटेड वीडियो ऑफ कोल, ये हो गया, ये क्या है जरा देखेंगे। सो दिस इज द एक्चुअली, हाँ ये मॉडलिंग इसका है, दिस इज वर्थ वीडियो इज नाइस। एल्यूमिनियम वगैरह उसमें डाल के उन्होंने पूरा एल्यूमिनियम फर्नेस बना दिया है, ऑटोमेटेड फाउंड्री है, हाँ, टेम्परेचर वगैरह सब कंट्रोल करते हैं। अभी ये टिल्ट किया, दिस इज इंडक्शन फर्नेस, इंडक्शन हीटिंग से ये एल्यूमिनियम उन्होंने मेल्ट किया, और ये पूरा यहाँ पे लेके जा रहे हैं, ऊपर का स्लैग वगैरह वो निकलते हैं, और फिर ये देखो इंडक्शन फर्नेस इट कैन बी टिल्टेड आल्सो, तो उन्होंने ये देखो, हाँ ये
हाँ, ये वो क्या कर रहा है मालूम है क्या, एलोइंग एलिमेंट्स वगैरह डाल रहा है उसमें, वो अभी जो पुड़ी डाली है तो, और उसमें स्लैग भी जल्दी से क्रिएट होता है, उसने हीट तैयार किया है अभी अंदर लोकली, अभी एल्यूमिनो थर्मिक रिएक्शन से हीट तैयार होता है। ये हीट तैयार होने के बाद उसके जो इम्प्यूरिटीज है ना, ये ऊपर आ जाते हैं इम्प्यूरिटीज। ओके, वो थोड़ा सा उसको ये कर रहा है, ये इम्प्यूरिटीज है ना वो बाहर निकलता है, और इम्प्यूरिटीज बाहर निकलने के बाद नीचे जो रहता है ना, सो इट इज प्योर एल्यूमिनियम। हाँ, तो वो प्योर एल्यूमिनियम उसको कास्टिंग में यूज करना है, सो दैट आपका जो कास्टिंग है ना, ये कास्टिंग डिफेक्ट फ्री रहे, क्योंकि यहाँ की इम्प्योरिटी अगर उधर चली गई तो क्या फायदा। सो द स्मॉल लैडल, नाउ इट इज टेकिंग स्मॉल लैडल, वो भर के वो जो रोबो है वो अभी कास्टिंग के पास ग्रेविटी डाई कास्टिंग के यहाँ पे जा रहा है, उसने वो अभी भर दिया, उसमें डाल दिया स्लोप से। अभी यहाँ पे उन्होंने मॉडलिंग किया है, कौन से एरिया में कितना टेम्परेचर रहता है ये बताता है, देखो इधर, हाँ ये 1000 तक है ना, ये देखो, ये डाल दिया अभी। ये जब ग्रेविटी से वर्टिकल ये हो गया, वो रोबो वापस आ गया, वो अपना फिल होने का काम कर रहा है वो मशीन। टॉप डाई बॉटम डाई एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाएगा, ये मोल्टन मेटल अंदर जाके वो पूरा जो कैविटीज है वहाँ पे चला जाएगा, एंड फिर वो टॉप डाई हम लोग ऊपर उठा लेंगे, और ये तैयार किया हमने। फिर से वो रोबो का डालना चालू हो गया, तब तक वो जब तक वो डालने का काम चालू करता है वो मशीन तक आता नहीं, तब तक हमने ये वापस लेके बाहर बाहर लेके आए हम लोग। तो ये प्रोसेस चालू है हमारा। ये देखो, ये दूसरा एक पार्ट हमने तैयार किया, मतलब एक ही रोबो इसमें भी डाल रहा है और टाइम सेट करके वो दूसरे में भी डाल रहा है। देखो अभी ये मैन्युअली डाल रहा है अभी, ये पर्टिकुलर ये आदमी मैन्युअली डाल रहा है एक ही फर्नेस से, वो फर्नेस सभी ऑपरेटरों से इक्वी डिस्टेंस पे है, देखो टाइम सेव करने के लिए। हाँ, तो उसने ये अपर डाई लोअर डाई, और उसने ये देखो ये कास्टिंग निकाल दिया, कितना अच्छा कास्टिंग्स बना दिया। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम कास्टिंग दे हैव बीन मेड यूजिंग ग्रेविटी डाई कास्टिंग। सो और ये स्क्रैपिंग वगैरह बाद में उसकी जो प्रोसेस है ना, चिप्स निकालने का वगैरह, वो सब दिखा है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ये एक हो गया, सो वी विल अगेन गो टू, हाँ ये इधर आप इधर विंडो आ रहा है छोटा, तो इधर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ, तो वी हैव टू सी दिस वीडियो। वर्नियर से मेजर कर रहे आया क्या बराबर, देखो मतलब छोटे छोटे पार्ट्स भी जो है ना कॉम्प्लिकेटेड, वो भी ये हॉरिजॉन्टल डाई कास्टिंग मशीन्स। ये इंजेक्शन मोल्डिंग जैसा ही, आप प्लास्टिक में इंजेक्शन मोल्डिंग देखते थे ना, वैसा ही है सेम प्रोसेस, सिमिलर टू दैट, खाली उसमें जो प्लास्टिक था और इसमें अभी आपका एल्यूमिनियम, व्हाइट मेटल और जिंक ये रहते हैं। ओके, लो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर, ये देखो ये दोनों डाई है, ये टाइप का ये बना दिया है आपने मोल्ड वगैरह। सो कॉम्प्लिकेटेड शेप्स आर मेड, या अब अलग अलग दिख रहे ना, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है बेसिकली ये सब, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स है देखो, तो उन्होंने बना दिया। सो दीज आर द, yes, a piston ka cylinder. Okay, so these are about some of the parts. It is nice, no? So we have seen various die casting processes. Now we will see, we will go to defects. Various defects, just a minute, die casting ye ho gaya. So these are now I have collected, I have already sent you word file of casting defects. Okay, that material is sufficient for you. But to show you on this one slides, I have made some pictorial. Okay, so these are, once again we are repeating, either ये करो या वो करो, दोनों चलेगा. Blow holes, pin holes, shrinkage, cavities and porosity, these are major defects of casting. So what are these that I have shown here? These are holes formed by gas entrapped during solidification. तो सॉलिडिफिकेशन होते टाइम जो अंदर रह गया ना गैस, उसको बाहर आने का टाइम नहीं दिया हमने, को सफिशिएंट कूलिंग का टाइम नहीं दिया, तो ये ब्लो होल्स और पिन होल अंदर रह जाएंगे। ओके, सो उसको सफिशिएंट टाइम आपने देना चाहिए। कूलिंग, सॉलिडिफिकेशन बिहेवियर ना इसमें से स्टडी करने लायक है इन कास्टिंग। सो योर मोल्ड शुड बी मेड इन सच अ वे दैट, और मोल्ड क्रॉस सेक्शन शुड बी मेड इन सच दैट कि आपका जो हीट डेसिपेशन है वो जल्दी जल्दी हो जाए। एट द सेम टाइम इट शुड नॉट बी सो सडन दैट
कि ब्लो होल दिस गैस शुड नॉट फाइंड टाइम टू कम आउट, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. सो एक सॉलिडिफिकेशन एक पैटर्न रहता है, उसी रेट में, रेट ऑफ सॉलिडिफिकेशन उसी रेट से एक्चुअली सॉलिडिफाई होना चाहिए. सो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ मोल्ड मेकिंग कि इससे मतलब ऐसे डिफेक्ट्स ना आए. श्रिंकेज कैविटीज आर कैविटीज दैट हैव अ रफर शेप एंड समटाइम्स पेनिट्रेट डीप इनटू द कास्टिंग. जनरली वो सेंटर से ऐसे नीचे जाते हैं श्रिंकेज. ये देखो, ये आपने देखा ना, एक्सटर्नल श्रिंकेज, इंटरनल श्रिंकेज, ऐसा वर्टिकली वो ये जाने की जरूरत है क्योंकि साइड से ये होता है कूलिंग. तो साइड से मेटल श्रिंक होना चालू करता है और बीच का पोर्शन लास्ट में ऐसा ही रह जाता है, न ये साइड का न वो साइड का, तो बीच में वो ऐसा रह जाएगा. समटाइम्स व्हाट हैपेंस दैट porosity you can see here. Now here it is a cluster porosity. ये नहीं चलेगा, बाद में कास्टिंग को कुछ प्रेशर आएगा या फोर्स लगेगा उस पे इन द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, देन दिस porous hole can be joined and becomes a big hole and that is very detrimental क्योंकि वहां से बाद में क्रैक फॉर्म हो गया, वो कास्टिंग टूट भी सकता है. So here you can see blow holes and pinholes. Blow hole is slightly bigger in size, pinhole small or porosity you can call it. तो ये क्या आपको यहाँ दिया है, is formed due to gas entrapped and porosity is also gas pockets inside the metal caused by micro shrinkage or dendritic shrinkage during solidification. ये dendrite यानी क्या रहता है, कूलिंग जब होता है ना, सडन कूलिंग होता है ना, so dendrites are formed. So that is dendritic structure is nothing but that martensitic structure. आप लोग मटेरियल साइंस पढ़ रहे हैं ना अभी, लुकमन सर पढ़ा रहे हैं ना आपको अभी इसी सेमेस्टर में. इट मे बी इन द फोर्थ सेमेस्टर, आई डोंट नो व्हाट इज द न्यू पैटर्न एज पर आवर न्यू सिलेबस, बट इफ यू सी देयर, इफ कूल अगर स्मूथली होगा तो आपको जो नेसेसरी फेराइट स्ट्रक्चर है या परलाइट स्ट्रक्चर है वो आपको मिलेगा. अगर कूल फास्ट हो गया तो डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर यानी मार्टेनसाइट सीमेंटाइट कॉम्बिनेशन विच इज हार्ड एंड ब्रिटल, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जहां से क्रैक जाने का, मतलब उसका हार्डनेस तो रहेगा बट क्रैक जाने का संभव ज्यादा है. सो डेंड्राइट्स आर नीडल लाइक शेप्स विच आर फॉर्म्ड, और वो जो दो नीडल के बीच में जो गैप है ना, वहां से आपका स्ट्रक्चर कोलैप्स हो सकता है, क्रैक्स वहां से आपका जा सकता है मतलब. सो दैट डेंड्रिटिक स्ट्रक्चर जो है ना वो उससे पोरोसिटी तैयार होता है, पोरोसिटी. सो एक्चुअली कूलिंग रेट पे ये सब डिपेंड है कि कूलिंग रेट थोड़ा सा स्लो हो जाए सो दैट ये जो गैस पॉकेट्स वगैरह ये सब आपका चला जाए. या श्रिंकेज होता है ना मटेरियल, तो श्रिंकेज अलाउंस हम हमेशा देते हैं, तो थोड़ा सा ओवर साइज हम हमेशा पैटर्न को देते हैं, वो तो साइज का हो गया. लेकिन बीच के पोर्शन का क्या करेंगे कि बीच का पोर्शन थोड़ा सा इतने जल्दी भी वो श्रिंक नहीं होना चाहिए. सो दैट बेसिकली डिपेंड अपॉन मोल्ड मेकिंग टेक्निक कि आपका कूलिंग रेट शुड बी प्रॉपर कि कास्टिंग आराम से ठंडा हो जाए. ओके, सो दैट इज वन. सो वी कैन सी हियर फोटो लिया है एक्सरे से, पोरोसिटी कैसा दिखता है. देखो पोरोसिटी, ये ब्लो होल्स बड़े रहते हैं साइज में, ये देखो बड़े ब्लो होल है ना, ये बड़े रहते हैं. छोटे छोटे रहेंगे तो उसको कहते हैं पोरोसिटी. यू कैन सी दिस. ये श्रिंकेज कैविटी ऐसा बीच से ही रहेंगी ये. तो थोड़ा सा इसको ओवरफिल होना जरूरी है. कास्टिंग का शेप भी ऐसा थोड़ा सा करते हैं कि वो श्रिंकेज कैविटी को भी थोड़ा सा कॉम्पेंसेट कर सके. ये ऐसा आपको देना पड़ेगा. देन मिश्रण एंड कोल्ड शट. ये मिश्रण कोल्ड शट नाम का एक डिफेक्ट है. समझो तुम्हारा ये कास्टिंग इतना पूरा ये शेप का है इतना, लेकिन आपने स्प्रू से फिल कर दिया, गेट से अंदर गया और ये आ जाके यहीं पे रुक गया. सो इट इज कोल्ड शट, means it is shutting in cold condition in between, so that is known as cold shut. Your material has not completely reached up to end, so gate design should be such that, and the temperature of the flow it should be such that it should reach up to this end. So basically this design on mold design, sprue design also, it should go at speedy portion here. So mostly they do here, what they do here there is a sprue cup here there is a pouring basin here. Here it is slightly circular. तो ये ऐसा आके स्पीडीली यहाँ पे चले जाए, ऐसा नहीं कि यहाँ आके सडनली यहाँ पे रुक जाए. सडन चेंज इन क्रॉस सेक्शन इज नॉट परमिटेड. ये ऐसा गोल होना चाहिए सो दैट ऐसा स्मूथली मेटल आके यहाँ पे ऐसा घुस जाए. इट शुड गो
इनसाइड विद स्पीड, ऐसा नहीं कि यहाँ आके रुक गए और फिर से थोड़ा सा पाथ निकल के यहाँ पे, ऐसा नहीं है। दैट्स वाई ये थोड़ा सा ऐसा कर्वेचर रहता है, यहाँ भी कर्वेचर रहता है और यहाँ भी कर्वेचर रहता है। सो दिस हैज टू बी कर्व्ड एक्चुअली. So depend upon your getting system design. All these things are done. Mix run and cold shut we call it. Okay. उसके वजह से क्या कैसा होता है देखो, या ऐसे कोल्ड शट होता है, मतलब आपका कास्टिंग यहाँ से पोर होते 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 यहाँ से आया, यहाँ से भी पोर होते होते आया, लेकिन दोनों जुड़ा नहीं, अब क्या हो गया, कोल्ड शट रह गया, है ना। और ये बेयरिंग अगर काम में आ गया और यहाँ पे आपका शाफ्ट घूम रहा है बेयरिंग में, दन दन दन, उसके साइड से जो आपका फोर्स आ रहा है, साइड थ्रस्ट, उससे तो ये कोल्ड शट वाला ये पोर्शन आज तो ठीक है यहाँ पे है, वो बाद में ओपन होता चला जाएगा और एक दिन ऊपर का हिस्सा टूट के बाजू में हो जाएगा। सो ये कोल्ड शट ये परवड़ता नहीं है। ये देखो, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कोल्ड शट. सो एवरीथिंग शुड बी प्रॉपरली फील्ड. दैट इज द this thing. Cuts and washes. Okay, so they are caused due to erosion of mold and core surfaces by the metal flowing in the mold cavity. Okay, these defects are avoided by proper ramming, having sand of required strength and controlling. मतलब सैंड का अगर पोर्शन थोड़ा सा डैमेज हो गया है मोल्ड का वगैरह, तो वो शेप इसमें भी आ जाएगा। अभी कौन इसको वेल्ड करेगा, फिर उसमें ग्राइंडिंग करेगा, कौन रिपेयर करते बैठेगा। कास्टिंग का अभी तैयार नहीं हुआ कि इसका डिफेक्ट चालू हो गया, तो इट इज रियली डेंजरस. दैट्स व्हाई ये उन्होंने उपाय क्या किया है, रेमेडी दिस डिफेक्ट्स आर अवॉइडेड बाय प्रॉपरली रैमिंग, हैविंग सैंड ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड कंट्रोलिंग द टर्बुलेंस ड्यूरिंग पोरिंग. टर्बुलेंस ड्यूरिंग पोरिंग मतलब पोरिंग से सडन इम्पैक्ट आपका नहीं आना चाहिए मोल्ड पे, इसलिए मैंने बोला ना, इट शुड देयर शुड बी सम कर्वेचर. ओके, metal should smoothly flow in the mold. So these are various now these defects whatever we have studied now, ये एक साथ उन्होंने बताया. मिश्रण, कोल्ड शट, श्रिंकेज कैविटी, माइक्रो पोरोसिटी एंड हॉट टीयरिंग. ओके, ये देखो, sometimes material get tears due to suddenly heating and cooling. Okay, suddenly heating and cooling. So many a times what happens, chills are used here. Chills are used here. Okay, तो ये सडन हॉट टेयरिंग वगैरह इसमें आप अवॉइड कर सकते हैं ये पोर्शंस में. So this is about the defects. Okay, now these defects are found out by various NDT processes. What is NDT बच्चों? NDT, what is NDT? Anybody knows? NDT processes. You can, what is long form? फर्स्ट ईयर में हुआ है आपको, डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग एंड नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग. याद आया? हेलो स्टूडेंट, हाँ मालूम है ना. तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम इसके लिए यूज करते हैं. अभी फोर्जिंग डिफेक्ट हो, कास्टिंग डिफेक्ट हो, वेल्डिंग डिफेक्ट हो, ये सब डिफेक्ट्स मेजर करने के लिए हमको नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग यूज होता है. सो वी यूज नॉन डिस्ट्रक्टिव, वेरियस नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग्स. इन दैट द फर्स्ट वन इज दिस, दैट इज द डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग. मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ फिर. ये बड़ा करके थोड़ा सा इसको नीचे लाएंगे हम लोग अभी. ये देखो, डाई पेनिट्रेशन टेस्ट. ये, सो दिस इज डाई पेनिट्रेशन टेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ डाई पेनिट्रेशन टेस्ट. ये टेस्ट कैसा रहता है, इफ देयर इज अ क्रैक इन द सरफेस ऑफ प्लेट. ओके, बट वी डोंट नो दैट it is on the surface, surface defects, but it's a very minor crack, hairline crack, we cannot see it. So but later on it's detrimental, because if that casting is later on comes under tension, then that crack may open. वो टाइम मालूम को क्या फायदा नहीं, अरे इसमें क्रैक निकला, अभी क्या करेंगे, फिर क्रैक फिल करो, वेल्ड करो, ग्राइंड करो, बहुत मेहनत जाएगा ना. शुरू में ही अगर मालूम पड़ा तो अच्छा है ना. कास्टिंग तैयार हुआ, थोड़ा सा आपने पॉलिशिंग वगैरह किया, उस पे हॉट शॉर्ट ब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग वगैरह कर दिया, फेटलिंग एंड क्लीनिंग, दैट ऑपरेशन वी कॉल इट आफ्टर कास्टिंग इज प्रिपेयर्ड. देन थोड़ा पॉलिशिंग वगैरह किया हमने, बाद में हमने डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करना है हमको. तो डाई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस एरिया का हमको टेस्ट करना है उस एरिया पे पहले एक रेड डाई लगाते हैं.
रेड डाई नाम की एक शाई टाइप रहता है, ऐसा रेड रेड कलर, रेड ऐसा क्या कहते हैं एग्जैक्ट कलर उसका कैसा रहता है, हम कहते हैं ना हिंदी में रानी कलर, यानी इट इज ना, इट इज इन बिटवीन रेड एंड पिंक, वो जो शेड है ना वो उस पे हम लोग डालते हैं रेड डाई। तो व्हाट हैपेंस इज उस डाई में ऐसा केमिकल है कि इट पेनिट्रेट्स द क्रैक। ओके, तो उसको क्या वर्ड है एक्चुअली, व्हेन इट गोज इनटू टू द क्रैक, दैट इट सिप्स इनटू द क्रैक, एक वर्ड है उसको। आप लोगों ने पहले भी 12th में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। सो दैट रेड डाई सिप्स इनटू द क्रैक। ओके, कैपिलरी इफेक्ट। ओके, कैपिलरी इफेक्ट इज गोज इन द दैट क्रैक। और हम लोग उसको रेड डाई लगा के थोड़ा रुकेंगे कि कोई क्रैक वगैरह है उसमें, उसको सीप होके जाने दो, वो गया। नाउ व्हाट वी डू, हम लोग पूरा डाई निकाल देते हैं, वी वाइप आउट ऑल दिस डाई। लेकिन क्रैक में जो गया है ना, उधर तो वो डाई उधर है, हमको दिखता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई अ डेवलपर, चॉक पाउडर, और अपना जो रेगुलर पाउडर और पाउडर हम लोग स्प्रे करेंगे। जैसे ही पाउडर स्प्रे करता है, वो एमोर्फस है, वो उसको खींच लेता है। वो जो रेड डाई है, इट इज स्टिल इन द वेट कंडीशन, उसको वो खींच लेगा। और हमको मालूम पड़ेगा, अरे यहाँ से एक लाल कलर आया, इसका मतलब इसके नीचे उधर क्रैक है। एंड देन व्हाट वी डू इज वी डिग दैट पोर्शन, जो सरफेस पे ही रहेगा ना, तो थोड़ा सा पोर्शन वो ग्राइंडिंग से निकालते हैं, उसमें वेल्डिंग करते हैं हम लोग, थोड़ा सा वेल्ड से भरते हैं। वेल्डिंग मतलब हमेशा ज्वाइनिंग नहीं रहता है, वेल्ड में थोड़ा हाई टेम्परेचर देने के बाद हम लोग मेल्ट करता है मेटल, वो मेटल उस पर डालता है और फिर से उसको ग्राइंडिंग करता है। मतलब हम मेटल भरते हैं उसके ऊपर, उसको ग्राइंड करते हैं और हम रिपेयर करते हैं। सो दैट इज पॉसिबल। ओके, रिपेयर ही भी आपको बताया। और डिफेक्ट कहाँ है वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डाई पेनिट्रेशन टेस्ट बोलते हैं। सो दिस डाई, रेड डाई, in is penetrated in the defect, and later on, after applying the developer, we see the location of the defect, but this is only limited to surface defect. Okay, it is very very popular। हमारे पास अपने मेटलर्जी लेबोरेटरी में है ये रेड डाई, रेड डाई के डब्बे पड़े हैं भरपूर, अभी नया स्टॉक मंगवाना था कि कोरोना आ गया। एनीवे तो ये क्रैक पे हम लोग मतलब जो भी डिफेक्ट हमको जिस सरफेस का मेजर करना है उस पर हम लोग रेड डाई सिप करेंगे, डेवलपर अप्लाई करेंगे, वाइप आउट करेंगे, आप सॉरी सॉरी वाइप आउट करेंगे, डेवलपर डालेंगे और वो डाई का पोजीशन निकालेंगे। बट इट इज लिमिटेड टू ओनली सरफेस क्रैक। सो व्हाट शुड वी डू, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अलग अलग प्रोसेसेस अभी आगे देखने वाले हैं। तो ये प्रोसेस देखो, ये 4 प्रोसेस है, ABCD, ये 4 फिगर 4 प्रोसेस। सो जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट। तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। जस्ट रीड दो स्टेटमेंट्स, आई होप स्पेशली मेड दिस स्लाइड्स फॉर यू। फोर्थ स्टेप आई हैव गिवन हियर, ये पढ़ो, ये देखो, red dye shifts from crack into chalk to give visible indication of the defect, location of the defect. Now we will see other process. That process to check the defect is known as magnetic particle testing. यहाँ पे मैंने वेल्डिंग का एग्जांपल दिखाया है, लेकिन आप ऐसा नहीं है वेल्डिंग ही करो, या वेल्डिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है ये मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वेल्डिंग के लिए ही चाहिए। जहाँ पे भी आपका डिफेक्ट आपको देखना है उस एरिया में आप क्या करो, आपका 2 मैग्नेटिक पोल रहेंगे, एक नॉर्थ वाला रहेगा, एक साउथ वाला रहेगा, हाँ, मैग्नेट। तो एक्चुअली हम लोग मैग्नेटिज्म का यूज कैसा करते हैं, देखो ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट आप देखो, अब लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में इसका बहुत स्टडी किया है, 10th में ज़्यादा किया है कि ये मैग्नेटिज्म, ये नॉर्थ साउथ के अराउंड मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कैसे ये डायरेक्शन में रहते हैं, जैसे अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में भी वो वैसे ही रहते हैं ना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। उसके वजह से सन्स के जो अनवांटेड जो पोर्शन है, ये इंफ्रारेड वगैरह, ये उसके अल्ट्रावायलेट वगैरह, उससे हमारा बचाव होता है, हाँ, बिकॉज मैग्नेटिक पार्टिकल्स दे आर नॉट विजिबल बट दे आर वेरी पावरफुल। ओके,
अगर हमारे यहाँ हमने बीच में से ही ये कट कर दिया, नॉर्थ साउथ पोल, ये जो मैग्नेट है इसको हमने बीच में से ही कट किया, तो क्या होगा, ये जो नॉर्थ है ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये साउथ है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ओके। और इधर एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा, बराबर है, हाँ, इधर एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड तैयार होगा। सिमिलरली हमारा हमने मतलब ये लोकल मैग्नेटिक फील्ड यानी क्या है, ये क्रैक जब जाता है तो भी यही सेम इफेक्ट है ना। क्रैक जब फॉर्म होता है तो यानी हम जो एक कंटिन्यूस जो पीस है उसके बीच में हम लोग ये कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस तैयार कर रहे हैं, क्रैक फॉर्म होना या ये कोई डिफेक्ट होना। फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई पार्ट ऐसा है, एक पार्ट जिसका हमको मैग्नेटिकल पार्टिकल टेस्टिंग करना है मैग्नेटिकली, तो एक साइड में साउथ एक साइड में नॉर्थ पकड़ेंगे हम लोग, हाँ। या कभी कभी आजकल एक ही इक्विपमेंट आता है, वही इक्विपमेंट का एक पोल इधर और एक पोल इधर रहेगा ना, तो उसके बीच का पोर्शन मैग्नेटिकली ये हो जाता है, मतलब मैग्नेटाइज हो जाता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें आयरन पार्टिकल स्प्रिंकल करेंगे, तो जहाँ पे मैग्नेटिज्म क्रिएट हो गया है ना, अगर साउंड पोर्शन है ना, तो इस पूरे मैग्नेटाइज्ड सरफेस पे वो आयरन पार्टिकल इवनली स्प्रेड हो जाएंगे। अगर जहाँ कोई डिफेक्ट है, किसी जगह पे अगर डिफेक्ट है, तो उधर एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड क्रिएटेड है, मतलब जनरल मैग्नेटिक फील्ड तो उसके पास है ही है, प्लस उसका एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड भी है अराउंड द डिफेक्ट, तो वहां पे आपके ज्यादा आयरन पार्टिकल्स जमा होंगे। आर यू गेटिंग बॉयज, डियर स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग? यस सर। कि Yes, sir. सरफेस जब इवन है तो आपने नॉर्थ और साउथ का एक ये पोल अप्लाई किया, तो आपका पूरा एरिया मैग्नेटाइज हो गया, और आयरन पाउडर स्प्रिंकल करने के बाद सब आयरन पाउडर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जहां पे डिफेक्ट है वहां एक लोकल मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है, जहां जैसा हमने यहाँ पे देखा वैसा, तो उस पे जरा ज्यादा जमा हो रहा है आयरन पाउडर। तो हमने देखने का, अरे यहाँ डेंसिटी, जैसे रास्ते से जाते टाइम हम देखते हैं ना, एकदम गर्दी जमा हो गया, अरे कुछ तो हो गया, लफड़ा हो गया, एक्सीडेंट हो गया, किसी ने किसी को धड़क मारा, मारा मारी, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, हाँ। सो यू नो दैट इट इज नॉट नॉर्मल, बिकॉज जो रहदारी यहाँ पे जो तुम्हारी जा रही, वो छोड़ के एक जगह एकदम ज्यादा पब्लिक जमा हुआ, मीन समथिंग इज देयर। सो सेम वे कि जब अच्छा खासा मटेरियल है हमारा इवनली, और हमारा पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होके हर जगह बराबर चाहिए, एक जगह ही जमा हो गया, मतलब उधर कुछ लफड़ा है। And what is that lafda? Because there is some local magnetic field is created due to some defect, and that may be crack, may be porosity, but and so this magnetic particle testing is very very popular. But again there is a limitation. And what is that limitation? The limitation is this process is limited to only ferromagnetic material, जिससे जो मैग्नेटिज्म को साथ देता है, ऐसे ही मटेरियल को, जैसे स्टील हो, कास्ट स्टील हो, कास्ट आयरन हो, या एल्यूमिनियम को नहीं चलेगा, हाँ। दूसरा जो नॉन मैग्नेटिक है, पीतल को नहीं चलेगा, ब्रास को नहीं चलेगा। अरे बाप रे, आप बोलेंगे क्या यार, इतना अच्छा खासा ढूंढा था, कितना मस्त था, वो तो है ना भाई, कुछ चीजें एक ही चीज सब चीजों को लागू नहीं पड़ती है। तो ये मैग्नेटिक पार्टिकल इट इज वेरी वेरी पॉपुलर फॉर योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, स्टील के लिए। तो फिर क्या करे भाई, अभी तो बच्चों ने ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में सीखा है अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, सीखा है ना, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, एक्सरे टेस्टिंग आपने सीखा है ना पहले, हाँ। हाँ, तो उसके तरफ थोड़ा सा हम जाएंगे अभी। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग कहाँ है भाई, शायद अगले पेज पे है क्या, ये हाँ, अगले अगले पेज पे था, हाँ। इसको छोटा कर देते हैं अभी, हाँ ये देखो, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, हाँ। और छोटा थोड़ा सा कर देते हैं, नहीं रहने दो, इतना थोड़ा सा यहाँ पे जाएगा, चलेगा। फिगर, ट्रांसमिशन टेक्निक और रिफ्लेक्शन टेक्निक, इसमें दो टेक्निक है एक्चुअली। अल्ट्रासाउंड क्वार्ट्ज क्रिस्टल से क्रिएट करते हैं अल्ट्रासाउंड, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड इज क्रिएटेड बाय द ट्रांसड्यूसर, क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज यूज्ड इनसाइड। पूरा टेक्नोलॉजी मुझे मालूम नहीं तो मैं उसी कंपनी में काम करता, लोग को फर्स्ट ईयर में सीखे। क्वार्ट्ज क्रिस्टल इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स, उसके बहुत कुछ यूज है, नेवल इसके लिए आते हैं, आपका सरफेस का
सी सरफेस कितने डेप्थ तक है वो मेजर करने के लिए यूज होता है। ऐसा आपने फिजिक्स में सीखा है, फिजिक्स 1। फर्स्ट ईयर का फिजिक्स 1 काफी अच्छा है। मैं भी मेरे बच्चों को पढ़ाता था, हम दोनों मिलके पढ़ते थे, तो वो टाइम में मेरे को मालूम है लेजर टेक्निक्स, वेरियस लेजर वगैरह है ना आपके पास। वो सब आपको यूज होने वाला है इधर। तो हम बेसिक फिजिक्स वहाँ सीखे और उसके एप्लीकेशन हम पीपी में पढ़ रहे हैं। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी वेस्ट नहीं जा रहा है। ऐसा एक भी ऐसा ये नहीं है, वेस्ट हो जाने वाला कोई नहीं है। कार्बन नैनो ट्यूब वगैरह आपने इसमें पढ़े, इसमें केमिस्ट्री में, वो अभी ओराइन में यूज कर रहे हैं बच्चे लाइट वेट व्हीकल के लिए। तो अभी जो भी सीख रहे हैं हम लोग, वेरी 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 फ्रूटफुल, व्यवहार उपयोगी, बिजनेस में, समाज में, सोसाइटी में यूज होने वाला चीज है। अल्ट्रासोनिक तो बहुत फेमस है। अल्ट्रासोनिक अपने अभी खरीदा है अपने कॉलेज में, उसका ट्रेनिंग हमारा बाकी है, थोड़ा सा सीखा हम लोग, लेकिन उसकी सेटिंग है ना थोड़ा सा टफ है। तो वो लोग बोले हमको 8 दिन के ट्रेनिंग के लिए आ जाओ। हम लोग सोच ही रहे थे ये वेकेशन में करें, यू नो व्हाट हैपेंड। हाँ, तो ये मार्च से सब प्लानिंग थोड़ा गड़बड़ा गया हमारा। तो चलो कोई ठीक नहीं है, ठीक है बाद में करेंगे। आपको हम लोग इक्विपमेंट वगैरह दिखाएंगे वो बाद में जब ओपन होगा तो। देखो क्या होता है ट्रांसमिशन टेक्निक में, क्या होता है देखो, इधर एक आपका CRT रहेगा तुम्हारा ये करने के लिए, ट्रांसमिट सिग्नल दिखाने के लिए अल्ट्रासोनिक का। तो उसमें आप चालू हो गया ना ये सिग्नल, तो ये तुम्हारा स्टार्टिंग है, मतलब एक स्टार्टिंग प्रोब रहेगा। ये जो प्रोब है ना, ये ऊपर का सेंसर और प्रोब, ये स्टार्टिंग वाला रहेगा। और दूसरे साइड में एक रिसीवर प्रोब रहेगा। ओके, ऐसा रिसीवर प्रोब रहेगा। यहाँ से हम लोग वो रेज देना चालू करेंगे, बटन दबाने के बाद वो अल्ट्रासाउंड जाना चालू हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे रिसीवर को, और वो रिसीवर इसको लेके वापस भेजेगा। और ये आपका पूरा ऐसा तो आपको दिखेगा सिग्नल कि आपका वेव जा रहा है, पूरा स्क्रीन भरा रहेगा। लेकिन अगर बीच में डिफेक्ट सामने आया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है ना, ये डिफेक्ट आपको दिख रहे हैं ना, ऐसा कोई सामने आया, तो वो क्या होगा कि ये डिफेक्ट से ही वो वापस चला जाएगा सिग्नल। मतलब ये ऐसा है, यहाँ से आपका सिग्नल दिख रहा है लेकिन यहाँ लॉस्ट हो गया, मतलब वो रिसीवर तक पहुंचा ही नहीं। हाँ, बच्चा घर से निकला, स्कूल में पहुंचा ही नहीं। क्या हो गया, बराबर है ना, बीच में कुछ हो गया, इधर गड्ढे में गिर गया कि किसी ने भगाया, कुछ तो हो गया, डिफेक्ट आ गया, क्रैक आ गया। तो ट्रांसमीटर ने इसको भेजा लेकिन वो स्कूल में पहुंचा नहीं रिसीवर में, तो यहाँ बोम्बा बोम्ब हो गया, अरे आया नहीं आया नहीं, ये देखो सिग्नल लॉस्ट। इसका मतलब इसके नीचे डिफेक्ट है। अब क्या करेंगे, लेके आओ ग्राइंडिंग मशीन, ये लेके आओ, करो ग्राइंड, क्या है देखो क्या हुआ उधर, ढूंढो। हाँ, ढूंढो उधर। लेकिन ग्राइंडिंग करते जा रहा है करते जा रहा है, वर्कमैन मिल ही नहीं रहा है। अगर 10-12 का प्लेट है तो मिल जाएगा डिफेक्ट जल्दी, 40 का है तो क्या करोगे, 40 का है डिफेक्ट, और ऊपर से सिग्नल नीचे नहीं आ रहा है, और ऊपर से आपने गड्ढा करना चालू किया ग्राइंडिंग मशीन से। हाँ, मेटल है भाई, टाइम लगता है गड्ढा खोदने को। 25 तक आया, फिर भी नहीं मिल रहा है। पसीना आ गया ऑपरेटर को, 2 शिफ्ट चला गया, साहब क्या करेंगे। अरे 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 अरे, इधर ही था, लेकिन इधर ही मैंने प्रोब लगाया और ट्रांसमीटर नहीं आ रहा था, तो क्या करेंगे। तो बोलेंगे यार नीचे से गड्ढा खोदना था तो शायद जल्दी आता था। तो ऑपरेटर बोलता है सर अभी तो मैंने 25 खोदा ऊपर से, 40 का थिकनेस है, अभी भी गड्ढा नहीं मिल रहा है, क्या करूं। अभी नीचे से मैं अगर करने जाऊं तो हो सकता है कि वर्कपीस ही टूट जाएगा। नहीं नहीं, डिग कर भाई, अभी अभी सत्यानाश हो गया यार, अब कब वेल्ड करेंगे, कब फिल करेंगे, प्रॉब्लम आया ना। तो बोलता है टेक्नीशियन कहेगा भाई इससे थोड़ा सा और अलग टेक्निक यूज करेंगे, अल्ट्रासोनिक ही यूज करेंगे, लेकिन रिफ्लेक्शन टेक्निक यूज करेंगे। बच्चों ये रिफ्लेक्शन टेक्निक है, ये आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिफ्लेक्शन टेक्निक में आपको क्या होगा, हाँ, ऐसा एक प्रोब रहेगा ऊपर का, हाँ, वही खुद ट्रांसमीटर भी रहेगा और वही रिसीवर भी रहेगा। आप समझ आए ना, वही ट्रांसमीटर भी रहेगा और वही रिसीवर भी रहेगा। कैसे, एक स्टार्टिंग का पीक आएगा, जैसे यहाँ पे आया वैसा एक स्टार्टिंग का पीक इधर भी आएगा।
तो यहाँ से हमने सिग्नल करना छोड़ दिया, हाँ, ये अल्ट्रासोनिक सिग्नल छोड़ दिए। उसको पहले हम लोग ये स्केल सेट करते, ये 40 mm का है ना, समझो एक एग्जांपल हमने दिया, ये 40 mm का है ना, तो ये स्केल हम 40 mm को सेट करते। वही कैसे सेट करना है हमको सीखना है। वो ट्रेनिंग देने वाला आदमी है ना, उस दिन हमको जमा नहीं यार, उस दिन हमने ट्राई किया, वो इज नॉट ईजी। अल्ट्रासोनिक का ऑपरेशन, वो बोला तुमको बाकायदा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, और वो बोला पापा अंधेरे आना पड़ेगा, इसमें वो रुक गया। वी वांटेड टू लर्न, माई सेल्फ एंड भोसले सर गए थे उसके पास, वो आया भी था अपने यहाँ पे, मैं दिखाऊंगा उसका भी फोटोज वगैरह आपको। उनका टेक्नीशियन आया था हमारे पास लास्ट टाइम, अपना सेकंड ईयर का पूरा बैच 315 में लेके हमने ट्रेनिंग दिया उन्होंने हमको, ये सब लास्ट टाइम। मतलब हम जा नहीं सके तो उनको बुलाया और उन्होंने ट्रेनिंग दिया था। मैं आपको उनको फोटोज वगैरह दिखाता हूँ बाद में, सब कुछ। हाँ, आज नहीं होगा शायद, वो अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी 5-10 मिनट में आपको छोड़ना है, तो ये टेक्निक पूरी करता हूँ मैं। तो एक पहला पीक आया, यहाँ पे पहला पीक आया यहाँ से, ओके। और दूसरा पिक कहाँ आया, 40 mm पे, जो हमने यहाँ से सेट किया, 0 तो 50 सेट किया, तो 40 mm ये है, एक दूसरा पिक आ गया, स्टार्टिंग पिक एंड पिक, ओके। और इसमें क्या फैसिलिटी है मालूम है क्या, इसमें जो भी रोकता है ना उसी डिस्टेंस पे पीक आता है, ओके। तो ये क्रैक है, सेम सेम देखो यही फिगर है, देखो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे क्रैक है, तो जिस डिस्टेंस पे क्रैक है वहीं पे पीक आता है, यू अंडरस्टैंड। अभी 12 mm पे अगर पीक है तो खोदो ऊपर से, 28 mm में पीक है तो बराबर 180 डिग्री नीचे जाओ, नीचे से खोदो, आपको डिफेक्ट जल्दी मिल जाएगा। बच्चों गॉट इट, द एडवांटेज ऑफ रिफ्लेक्शन टेक्निक, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, बच्चों sir. जवाब दो, हाँ। दोनों टेक्निक सेम है, Yes, sir. डिफेक्ट, हाँ डिफेक्ट डिटेक्शन मिलता है, लेकिन डिफेक्ट का एग्जैक्ट डेप्थ भी इसमें मालूम पड़ता है, किसमें, अपने रिफ्लेक्शन टेक्निक में। तो ट्रांसमिशन टेक्निक एंड रिफ्लेक्शन टेक्निक अल्ट्रासोनिक में बहुत बहुत पॉपुलर है। तो आप बोलेंगे वाह सर क्या बात है, हमने पहले विजुअल इंस्पेक्शन देखा, खाली देख के, विजुअल इंस्पेक्शन को कौन पूछता है, छोटा छोटा डिफेक्ट तो दिखेगा ही नहीं, ऊपर से दिखेगा हम लोग रिपेयर करेंगे। बाद में हमने डाई पेनिट्रेशन देखा, रेड डाई वगैरह, वो सरफेस का था। चलो अगला हमने मैग्नेटिक देखा, अरे कितना मस्त है आयरन पाउडर वगैरह, लेकिन वो फेरो मैग्नेटिक के लिए। फिर सबका बाप हमने निकाला अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन, इसके आगे तो कोई टिकने वाला नहीं है, दिस इज अल्टीमेट। बच्चे खुश हो गए, अरे वाह वाह क्या टेक्निक निकाली है सर, अरे वाह वाह कितना है टेक्नोलॉजी। लेकिन ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हर एक चीज को तोड़ नहीं सकती, हाँ, ये चीज अल्ट्रासोनिक को भी लागू है। समझो मेरा डिफेक्ट वर्टिकल है, मतलब पैरेलल टू योर सिग्नल, देन व्हाट विल हैपन, देन दैट अल्ट्रासाउंड विल पास थ्रू दैट, और बोलेगा यहाँ पे डिफेक्ट नहीं है। जब मेरा डिफेक्ट ही उसको पैरेलल है तो पहचान नहीं पाता है ना, हाँ? पुलिस के ही वेश में अगर चोर कहीं जाता है तो लोग उसको आड़ाते नहीं, वो बोलेंगे ये पुलिस है, अब उसको पकड़ने कैसा, बराबर है ना। भीड़ में पुलिस के ही वेश में कोई घूम रहा है तो उसको पकड़ना कैसा। तो वही है, अगर तुम्हारा क्रैक है अगर पैरेलल टू योर रेज है, अल्ट्रासाउंड रे, तो ये रे क्या करेगा, ढूंढते ढूंढते जाएगा, उसको कोई अपोज नहीं करेगा। ये देखो वो हॉरिजॉन्टल है इसलिए उसने अपोज किया, सिग्नल मिल गया। जो उसको अपोज ही नहीं करता है उसमें क्या होगा, अपना सिग्नल नीचे जाएगा आएगा वापस, हम बोलेंगे कोई डिफेक्ट नहीं सर, इज वेरी नाइस। लेकिन बाद में जब वो जाएगा ना, लंबा क्रैक रहता है, बट इट इज इन दिस डायरेक्शन, लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक। हाँ, ये जो ट्रांसवर्स क्रैक है उसको तो हम ढूंढेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल का क्या करने का बच्चों। फिर बच्चे बोलेंगे सर क्या सर, अभी अभी हमने निकाला था अल्ट्रासाउंड, साउंड इज अल्टीमेट। आपके प्रोसेस खत्म होते हैं क्या, नहीं भाई, उसके लिए उपाय है एक्सरे टेस्टिंग, एक्सरे टेस्टिंग। और अगर आपका स्लैब थिकनेस वगैरह कास्टिंग का बहुत बड़ा है, समझो 150 mm वगैरह है, तो गैमा रे टेस्टिंग, ये बात करने में इजी है, गैमा रे एक्सरे, एक्सरे टेस्टिंग गैमा रेज के, इसमें वो एक्सपोजर ना होवे इसलिए बहुत केयर लेना पड़ता है। वो सेक्शन में ऐसा आपके इसमें बैज रहता है, आपके इसमें पॉकेट में ऐसा बैज लगाते हैं, उसमें मालूम है कितना एक्सरे को ये एक्सरे ऑपरेटर ये हो गया, एक्सपोज हो गया, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद उसको बाहर घूमने के लिए भेज देते हैं।
ठंडी हवा में हिमाचल वगैरह भेज देते कि बराबर हो के तेरा एक्सपोजर कम होना चाहिए, नहीं तो मरेगा टिश्यू विश्यू ये होके। गामा रे तो महा भयानक है। गामा रे जब चलता है ना वालचंद नगर में, इन द शेड वेयर आई वाज वर्किंग इन द स्पेशल प्रोडक्ट, व्हेन गामा रे टेस्टिंग वाज यूज्ड टू गो, ये पूरा ये ऐसा ब्लॉक करते थे सीमेंट का 150 mm का ब्रिक से, थिकनेस के ब्रिक से वो ब्लॉक करते थे ताकि वो पेनिट्रेट ना हो। गामा रे इज वेरी वेरी डेंजरस। कभी कभी वो अंतराल में भी घूम रहे गामा रेज, कहते हैं कि इवन इट कैन स्पॉइल बिग प्लैनेट्स आल्सो, ऐसा गामा रेज की ताकत है। तो वो गामा रे जाके आपका टेस्टिंग करके आता है, तो वो अंदर जाके पूरा आपका मटेरियल के अंदर जाके वो टेस्टिंग करके आएगा। सो अबाउट एक्सरे एंड गामा रे वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि आज फिर आपको ज़्यादा हो जाएगा। थोड़ा सा आपकी उत्सुकता बढ़ाई, आपको मतलब क्यूरोसिटी बढ़ाई कि सर अगले टाइम क्या पढ़ेंगे, एक्सरे क्या है। और एक्सरे में भी कुछ खामी है, उसको अल्ट्रासोनिक पूरा करता है। अल्ट्रासोनिक में जो खामियां हैं वो एक्सरे पूरा करता है, तो दोनों एक दूसरे के मतलब पूरक है दोनों। हाँ, सो अल्ट्रासाउंड भी इंडस्ट्री में अल्ट्रासाउंड और एक्सरे दोनों यूज करते हैं लोग। हाँ, एक्सरे में रिकॉर्ड भी रहता है ना, एक्सरे बोल के, इसमें रिकॉर्ड नहीं रहता है अल्ट्रासाउंड में। तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जब आता है बाहर का, वो टाइम जरूरत है कि आपको एक्सरे रिकॉर्ड रखे। तो जो दो पोर्शन का आपको जिस पोर्शन का हमको रिकॉर्ड रखना है उसमें कुछ नंबर डालते हैं, उसका एक्सरे में भी वो सेम आता है, सब जो लिखा वगैरह, और उस पोर्शन में पक्का एक्सरे रिपोर्ट रखते हैं। देन थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर कम्स ऑन और बोलता है इज इट, हाँ, फिर ये चेक करता है उसी पोर्शन का है ना, ठीक है, एंड व्हाट इज द रिपोर्ट, दीज आर द डिफेक्ट। नाउ वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, दैट थर्ड पार्टी इंस्पेक्टर यूज्ड टू सी। इन वालचंदनगर वी यूज्ड टू डू दैट, एनटीपीसी प्रोडक्ट यूज्ड टू कम, नेशनल थर्मल पावर स्टेशन वाला एक कैलेंड्रिया एंडशील वगैरह आता था। तो स्टेज इंस्पेक्शन के टाइम मैंने खुद देखा है ये, क्योंकि आई वाज सुपरवाइजर देयर। आफ्टर माय जीईटी ट्रेनिंग I used to be there as a shop engineer. I worked all the three shifts. That time, all these things I have seen that. Okay. Now that is you are getting that advantage because I am your teacher. Okay. Thank you very much. आज के लिए हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, एक अटेंडेंस ले लेंगे बच्चों अभी पहले। कितने बच्चे आए थे? 58। ग्रेट। हाँ, बच्चे आ रहे हैं, बच्चों को इंटरेस्ट हो रहा है। जितना हम लोग भी मेहनत लेते हैं आपके लिए, टीचिंग इज माई हॉबी, दैट्स वाई आई यूज आई ऑल कलेक्टेड ऑल दिस थिंग। ऐसे पम्पलेट्स वगैरह भी मेरे पास है। तो आप अभी ये नया ज़माना यूट्यूब का वगैरह है, तो हमको फैसिलिटी मिल रहा है। ओल्ड डेज में पम्पलेट्स वगैरह मैं दिखाता था मेरे। तो ये आपका नया ज़माना और अच्छा है। तो इसमें हम लोग 1 मिनट, पार्टिसिपेंट्स यहाँ कहाँ गया भाई वो, हाँ, सो आई एम डाउनलोडिंग द अटेंडेंस। ओके, 1 मिनट, डाउनलोड किया। हाँ, 1 मिनट और एक बार लेता हूँ, डाउनलोड अटेंडेंस शीट। Okay, now I am stopping my recording. In the next lecture, what we will do is we will complete that X-ray testing. उसके बाद अपना पहला चैप्टर खत्म होगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे कटिंग टूल की तरफ। कटिंग टूल इंजीनियरिंग पहला मॉड्यूल अपना खत्म होगा, जो बहुत बड़ा है अपना, वो खत्म होगा अपना। और हम लोग भी काफ़ी मेहनत ले रहे हैं उसके ऊपर, और आप लोगों को नोट्स भी भेज दिए हैं, कल बहुत नोट्स भेजा आपको, वो थरोली करो, डाउनलोड करो अपना आपके हार्ड ड्राइव में, और उसको आप सब देख लो। मैंने तो चेक किया है मॉड्यूल वाइज, हर एक पोर्शन का नोट्स आपको दिया है। ओके, यू गो और स्टडी करना चालू करो। आई एम स्टॉप रिकॉर्डिंग। ओके, ये रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप किया।